Okay, so today we'll start with chapter number 1, that is democracy. What is democracy and why democracy? This is political science. बच्चा तो जैसे हम history पढ़ते हैं वैसे जो civics का part होता है political science, that is democracy, like political science. तो उसका आज हम first chapter पढ़ने वाले हैं, that is democracy. Overview. What is democracy? What are its features? This chapter will help you to build on a simple definition of democracy. Step by step, we work out the meaning of the terms involved in this definition. So what we are going to study in this chapter, what is democracy, what are its features, what is the definition of democracy. The aim here is to understand clearly the bare minimum features of a democratic form of government. A democratic form कौन सी होती है government की, वो आज हम ये chapter में पढ़ेंगे. After going through this chapter, we should be able to distinguish a democratic form of government and a non-democratic form of government. Towards the end of this chapter, we step beyond this minimal objective and introduce a broader idea of democracy. Okay, so by the end of this chapter, हमें पता चलेगा that what is a democratic form of government and which is a non-democratic form of government. So if I ask you कि इंडिया में कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, so what are you guys going to answer? In our country, which form of government do we follow? Is it a democratic one or a non-democratic one? पहले तो, do you guys understand the difference? What is a democratic and a non-democratic government? Parth? Yes, ma'am. Yeah, do you understand what is democratic form of government and what is non-democratic form of government? No, ma'am. Okay, fine. We'll study that in today's chapter. Democracy is the most prevalent form of government in the world today, and it's expanding to more countries. But why is it so? What makes it better than other forms of government? That is the second big question that we take up in this chapter. So today we'll start with 1.1, which is what is democracy? Okay, can you define like what is democracy? Ma'am, democracy is of people and for Sorry, you were saying something. ma'am, democracy is of people and for people. Yeah, but what is it, Bacha? Yeah, you're true. It is for people, and but what does it mean? Like when I say a democratic country, what does that mean? Okay, chalo, we'll study. You have already read about different forms of government. On the basis of your understanding of democracy, so far, mention a few examples, write down some common features of democratic government and non-democratic government. Abhi, since we don't know, like आपने जैसे बोला that you have no idea what is democratic and what is non-democratic government, तो ये पाठ हम बाद में करेंगे. Once we are done with the chapter, ये आप अच्छे से बोल पाओगे. Now let us see why define democracy. कि हमें democracy को define क्यों करना है? Why? Before we proceed further, let us first take a note of an objection by Mary. She does not like this way of defining democracy and wants to ask some basic questions. Her teacher, Matilda Lingdor, responds to her question as other classmates join the discussion. Okay, so this is the discussion that why there is a need to define democracy. It is a discussion between like two people. One is the student, which is Mary, and another one is her teacher, which is Matilda Lingdor. So what is Mary saying? Ma'am, I don't like this idea. First, we spend time discussing democracy, and then we want to find out the meaning of democracy. I mean, logically, shouldn't we have approached it in the other way around?
Shouldn't the meaning have come first and then the example, right? तो यहाँ पे if you see, यहाँ पे पहले उन्होंने हमें features पूछे, types पूछे, और फिर हम definition के बारे में पढ़ रहे. So what Mary is saying that ma'am isn't ये थोड़ा this kind of approach is a little different because पहले हमने examples पढ़े and फिर हम definition पढ़ रहे. तो ऐसा approach अलग नहीं है. वैसा Mary पूछ रही है. किसको पूछ रही है? अपने मैम को. So what is ma'am replying? I can see your point, but that is not how we reason in everyday life. We use words like pen, rain, or love. Do we wait for it? Do we wait to have a definition of these words before we use them? तो उसकी मैम क्या बोल रही है कि we use words like pen हो गया, rain हो गया, love हो गया, printed हो गया, या any such example. ऐसे सारे words हम हमारे day to day life में use करते हैं. What is the ma'am saying कि क्या हम ये words का definition पहले पढ़ते हैं and फिर हम उन्हें use करते हैं? No, right? We directly use them. Come to think of it, do we have clear definition of this words? It is only by using a word that we understand its meaning, right? And ma'am bol rahi hai that do we have a clear definition when I talk about pen? Do you have like a clear definition? What does pen mean? No, we just use it and that is how we understand its meaning. Mary, but then why do we need definitions at all? So Mary क्या पूछती है? हाँ मैम आपका भी बराबर है. फिर why do we need definitions? हमें definitions चाहिए क्यों ना? हम ऐसे ही सारी चीजें use करते हैं. Linda, madam, we need a definition only when we come across a difficulty in the use of word, right? हम कभी definition use करते हैं जब हमें कोई difficulty आती है वो word को use करने के लिए. We need a definition of rain only when we wish to distinguish it from, say, drizzle or cloudburst. ठीक है, rain हम ऐसे ही normally हर sentence में use कर लेते हैं. But जब मैं आपको पूछूं that what is the difference between rain, drizzle, cloudburst, lightning, तो ऐसे सारे terms मैंने जब आपको बता दिए, तब आपको लगेगा ना कि हाँ बाबा, rain, drizzle से like drizzling is also a kind, थोड़ा बारिश गिरता है उसे हम drizzle बोलते हैं. तो तब हमें पता चलता है क्लाउड बर्स्ट इज ऑल्सो काइंड ऑफ रेनिंग. सो तब हमें जब हम एक साथ उसके सिनोनिम्स डालते हैं तब हमें पता चलता है कि या वो वर्ड का डेफिनेशन क्या है, राइट? तो उसकी मैम वही बोल रही है कि रेन हम ऐसे जब यूज करते तब हम डेफिनेशन नहीं पढ़ते, बट अगर उसका कोई सिनोनिम दे दिया तो उसके साथ जब हम ट्राई करते हैं रेन को यूज करने का तब हमें पता चलता है कि नहीं, रेन का डेफिनेशन होना जरूरी है. द सेम इज ट्रू फॉर डेमोक्रेसी. और इसी की तरह डेमोक्रेसी का भी डेफिनेशन पता होना हमें इम्पोर्टेंट है. We need a clear definition only because people use it for different purposes. Because very different kinds of governments call themselves democracy. तो यहाँ पे हम क्यों डेमोक्रेसी का डेफिनेशन ढूंढ रहे हैं बच्चा? बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट है एंड दैट इज व्हाई दे से कि हम भी डेमोक्रेसी फॉलो कर रहे हैं. तो है क्या डेमोक्रेसी जो आप फॉलो कर रहे हो? वो पता चलने के लिए हमें डेमोक्रेसी का मीनिंग पता होना जरूरी है. क्लियर यहाँ तक पार्ट? Yes, ma'am. ओके. रिबियन, ये और एक उनका क्लासमेट होगा. But why do we need to work on a definition? The other day you quoted Abraham Lincoln to us that democracy is a government of people, by the people and for the people. Something which you said, Parth, right? आपने भी यही definition दिया that democracy is for people, by people. So वो रिबियन जो है उनका क्लासमेट, वो भी वही पूछ रहा है कि मैम डेमोक्रेसी का डेफिनेशन होना क्यों जरूरी है? आपने तो कल ही हमें बताया ना, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ पीपल, जो पीपल की गवर्नमेंट है, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. बाय द पीपल मतलब पीपल ही उन्हें इलेक्ट करती है, एंड फॉर द पीपल किसके लिए है? लोगों के लिए ही है, जनता के लिए ही है. We in Meghalaya always ruled ourselves. That is accepted by everyone. Why do we need to challenge that? तो वो रिबियंग बोलता है कि मैं तो मेघालय से बिलोंग करता हूँ और वहाँ पे तो
हम ही खुद को रूल करते, लाइक हमारा कोई ऐसा गवर्नमेंट है नहीं, तो व्हाई डू वी नीड टू चेंज दैट, ये पूछता है डाउट रिव्यूइंग करके एक बच्चा। तो मैम बोलती है, आई एम नॉट सेइंग वी नीड टू चेंज इट, आई डू फाइंड दिस डेफिनेशन वेरी ब्यूटीफुल। तो मैम भी वही बोलते कि मैं नहीं बोल रही हूँ कि मुझे ये चेंज करना है, ये जो डेमोक्रेसी का डेफिनेशन है, फॉर द पीपल, इट इज गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय पीपल एंड फॉर पीपल, इवन आई लव दिस डेफिनेशन, but we don't know if this is the best way of defining unless we think about it ourselves. Okay, but जब हम खुद सोचते हैं तब हमें लगता है कि नहीं, यही एक परफेक्ट वे नहीं है जिस तरह से हम डेफिनेशन, सॉरी, डेमोक्रेसी को हम डिफाइन कर सकते हैं. We must not accept something just because it is famous, just because everyone accepts it. ठीक है, और ये डेफिनेशन just हम इसीलिए यूज नहीं करेंगे बिकॉज सब लोग बोलते हैं कि ये अब्राहम लिंकन ने बोला है और ये फेमस डेफिनेशन है, इसीलिए हमें यूज नहीं करना है, बट हमें उसका एक्चुअल लॉजिक समझना है. योलांडा, ma'am, can I suggest something? We don't need to look for any definition. I read somewhere that the word democracy comes from a Greek word which is demokratia. In Greek, demos means for people. Sorry, demos means people, and kratia means rule. Okay, तो वो क्या बोलते हैं? So democracy is basically ruled by people. This is the correct meaning. Where is the need to debate? तो योलांडा क्या करता है, जो हम जो वर्ड्स जो रहते हैं उसको जो ब्रेक करके मीनिंग करते हैं ना, जैसे डेमोक्रेसी है तो डेमो और क्रेसी, तो उसने वैसे ही निकाला कि मैम डेमोक्रेसी बिलोंग्स टू अ ग्रीक वर्ड. वो ग्रीक वर्ड क्या है? डेमोक्रेटिया. और डेमोक्रेटिया को अगर हमने ब्रेक किया तो दो वर्ड बनता है, डेमो और क्रेटिया. एंड डेमो का मतलब है पीपल और क्रेटिया का मतलब है रूल. तो वो बोलता है इट इज रूल बाय द पीपल, के जो लोग रूल कर रहे हैं उसी को हम डेमोक्रेसी बोलते. तो यहाँ पे कोई डिबेट की जरूरत है ही नहीं, मैंने लॉजिकली मीनिंग निकाल दिया. मैडम, that is also a very helpful way of thinking about this matter. I would just say that this does not always works. अभी ये वर्ड को तोड़ा, ये ग्रीक वर्ड से रिलेटेड था इसीलिए वो मीनिंग निकाल पाया ना. अभी सब वर्ड्स तो ऐसे ग्रीक वर्ड से बने नहीं होंगे, सबका आप ब्रेक डाउन कर नहीं सकते हो. जैसे एग्जांपल ले लो पेन, तो पेन को मैं कहाँ पे ब्रेक करूँ? किसने डेमोक्रेसी को डेमो और क्रेसी ऐसे ब्रेक किया, डेमो और क्रेटिया. बट पेन जैसा वर्ड हो गया या बुक जैसा वर्ड हो गया, उसे तो हम ब्रेक नहीं कर सकते. तो दिस काइंड ऑफ लॉजिक डज नॉट ऑलवेज वर्क्स. अ वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजिन, राइट? सब वर्ड्स के ओरिजिन नहीं होते हैं. जस्ट थिंक ऑफ कंप्यूटर्स. एक एग्जांपल मैम देती है कि कंप्यूटर का आप सोचो. Originally, they were used for computing, that is to say, calculating very difficult mathematical sums. But these days, very few people use computers for computing sums. They use it for writing, for designing, for listening to music, and for watching films. Words remains the same, but the meaning can change with time. तो यहाँ पे मैम ने बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिया कि पहले हम कंप्यूटर्स को क्यों क्या बोलते थे, इट इज ओनली यूज फॉर कंप्यूटिंग और इट इज ओनली यूज फॉर कैलकुलेटिंग. बट अभी के टाइम में ऐसा नहीं है, अभी हार्डली लोग कंप्यूटर को कैलकुलेटिंग के पर्पस के लिए यूज करते. पीपल यूज कैलकुलेटर फॉर दैट. सो नाउ व्हाट डू पीपल यूज कंप्यूटर्स फॉर? they use for designing, writing, music, listening music, etc. तो मैम क्या बोल रही है कि वो जो वर्ड है ना उसका मीनिंग विद टाइम चेंज होता है. ठीक है, सो वैसे ही डेमोक्रेसी जो है उसका भी मीनिंग विद टाइम इट वुड कीप changing, and that is why depending on the origin of the meaning is something which is not right. In that case it is not very useful to look at the origin of word, और in such cases में आप क्या वर्ड के ओरिजिन को ढूंढते नहीं बैठोगे वैसा. Mary, ma'am, so basically what are you saying is that there is no shortcut to our thinking about the matter ourselves. We have to think about its meaning and evolve a definition. तभी मैरी को समझ गया कि हम जो सारे शॉर्टकट्स निकाल रहे हैं वो सही नहीं है. हमें डेमोक्रेसी को पकड़ने के लिए पढ़ने के लिए पहले उसका मीनिंग समझना होगा, एंड हमें उसका डेफिनेशन कैसे इवॉल्व हुआ, विद टाइम्स कैसे चेंज हुआ, वो हमें पढ़ना होगा. मैडम, you get it right. Now let us get on with it now.
क्लियर इतना पार्ट, ये पूरा कन्वर्सेशन समझा आपको? Yes, ma'am. Yeah, so what is this conversation about? That they are trying कि मैम हम definition क्यों describe कर रहे हैं, उससे अच्छा हम origin ढूंढ सकते हैं, या उससे अच्छा जो famous लोगों के definitions है वो हम समझ सकते हैं. बट मैम ने बोला कि नहीं, origin हर बार work नहीं करता है. With times that keep changing, तो एक word का perfect definition होना बहुत जरूरी है. So let us see a simple definition of democracy. Let us get back to our discussion on similarities and difference among governments that are called democracy. One simple factor common to all democracy is the government is chosen by the people. कि अगर आप हर एक फैक्टर को पकड़ो तो हर फैक्टर में एक ही चीज है कि डेमोक्रेसी है ना, इट इज जो गवर्नमेंट है, सॉरी, वो किसने इलेक्ट की रहती है, लोगों ने इलेक्ट की रहती है. इट इज इलेक्टेड बाय पीपल. So we can start with this simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by people. तो जब मैंने आपको पहले पूछा कि what is democracy, तो अभी हमारी कंट्री जो है इंडिया, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. तो डेमोक्रेसी मतलब क्या, कि जहाँ पे लोग रूलर्स को इलेक्ट करते हैं, वी गाइस वोट, और फिर एक इलेक्टिव पर्सन आता है एज अ रूलर. तो हम डेमोक्रेसी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स के जो रूल कर रहे हैं वो किसने इलेक्ट किया होता है, वो लोगों ने ही इलेक्ट किया होता है. दे आर इलेक्टेड बाय द पीपल. क्लियर? No, ma'am. एक और बार समझाओ, मेरे को नहीं समझा. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे जो रूलर्स होते हैं ना उसे हम इलेक्ट करते हैं. अभी आपके अभी जैसे हमारे स्टेट में हो गए गवर्नमेंट, तो उनको किन्होंने सिलेक्ट किया है? हम लोगों ने ना. हम वोट करते हैं, फिर जो मेजोरिटी वोट्स आते हैं वो पर्सन गवर्नमेंट, उनकी गवर्नमेंट बनती है, वैसा. समझा? Okay, ma'am. तो वही यहाँ पे वही बताया है कि डेमोक्रेसी क्या है. इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. कौन सी गवर्नमेंट? जिसमें रूलर कौन इलेक्ट करता है? रूलर लोग इलेक्ट करते हैं, पीपल सिलेक्ट करते हैं. समझा? Yes, ma'am. ओके. This is a useful starting point. This definition allows us to separate democracy from forms of government that are clearly not democratic. तो अभी डेमोक्रेसी गवर्नमेंट आपको पता चल गया कि जहाँ पे जो रूलर होता है वो लोग उसे सिलेक्ट करते हैं. तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सा हो जाएगा बच्चा? कि जहाँ पे जो रूलर होता है वो लोग इलेक्ट नहीं करते हैं. दैट इज कॉल्ड एज non-democratic government. समझा यहाँ तक? Yes, ma'am. Okay. The army rules of Myanmar were not elected by the people. Those who happened to be in control of the army became the rulers of the country. People had no say in this discussion. Dictators like Pinochet are not elected by the people. This also applies to monarchies. The king of South. Okay, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. तो यहाँ पे उन्होंने हमें किसका एग्जाम्पल दिया है? उन्होंने नॉन डेमोक्रेटिक में हमें म्यांमार का एग्जाम्पल दिया है कि म्यांमार में पीपल जो है, लोग जो है, वो खुद के गवर्नमेंट को इलेक्ट नहीं करते. तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा डेमोक्रेसी के? नॉन डेमोक्रेसी. Yes, ma'am. आपका आवाज नहीं आ रहा. Hello, कौन ma'am. सा फॉर्म हो जाएगा गवर्नमेंट म्यांमार का? डेमोक्रेटिक हो जाएगा या नॉन डेमोक्रेटिक हो जाएगा? Ma'am, non-democratic, ma'am. Yeah, why? Because जो people है they are not electing the people. तो कौन elect कर रहा है? देखो, those who happen to be in control of the army became the rulers of the country. तो यहाँ पे कैसे हमारे पास president है, prime minister है, जिनकी government होती है, जो एक government body होती है. बट वहां पे क्या है बच्चा? म्यांमार में आर्मी का रूल है. ठीक है, वहां पे आर्मी लोगों का रूल है, और जो सारे लोग आर्मी के कंट्रोल में होते हैं या उनके साथ आते हैं ना, वो ये रूलर्स बन जाते. सी, दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ आर्मी, कि जो आर्मी के कंट्रोल में आते हैं वो क्या करते थे? वो उस कंट्री के रूलर बन जाते थे. तो म्यांमार इज अ नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे किसका रूल है? वहां पे आर्मी का रूल है. समझा? Yes, ma'am. ओके. तो वही यहाँ पे बताया है
people has no say in this discussion. तो यहाँ पे लोगों का ओपिनियन ही नहीं लिया जाता है, ठीक है, उनको सिर्फ वही करना है जो ये आर्मी बोलती है। तो वहां पे लोगों का कोई भी डिसीजन या उनके डिसीजन का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है। तो वहां के डिक्टेटर कौन थे? डिक्टेटर मतलब जो रूल करता है। तो वहां पे रूल कौन करता है? पिनोकेट करके एक थे जिनको लोगों ने इलेक्ट नहीं किया था। ओके, he was not elected by the people, but since he was in army and वहां पे आर्मी का रूल था, तो इसीलिए उनका रूल उस टाइम पे म्यांमार पे था। दिस ऑल्सो अप्लाइज टू मोनार्कीज, ठीक है। तो यही रूल किंग पे भी ये होता है, लागू होता है। तो किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया रूल नॉट बिकॉज द पीपल हैव चूजन देम टू डू सो, बट बिकॉज दे हैपन टू बी बोर्न इन द रॉयल फैमिली। तो एक एग्जाम्पल कौन से इसका है बच्चा? नॉन डेमोक्रेटिक का एक एग्जाम्पल है सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया। या सऊदी अरेबिया में भी कौन रूल करता है? वहां पे किंग्स रूल किंग करते रूल हैं। करते हैं। या जैसे म्यांमार में आर्मी रूल करती थी, वैसे सऊदी अरेबिया में किंग रूल करते हैं। और ये किंग को लोगों ने नहीं इलेक्ट किया है, दे आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, बट सिंस दे आर बोर्न इन रॉयल फैमिली, तो वो लोगों पे रूल करते हैं। मतलब समझा? मैम, मैम हाँ वो बोलो। रॉयल फैमिली कैसे क्रिएट हुआ रहेगा? पहले से, जैसे अभी किंग का जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो सारे किंग है, तो जो उनके फ्यूचर जनरेशन होते जाते हैं ना, वैसे। पर मतलब मैम उनके पास्ट का जो भी था वो रॉयल फैमिली का बना रहेगा ना, ना कि वो बॉर्न हुआ रहेगा ना मैम। हाँ, अरे जैसे अभी हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जैसे सार निकोलस थे, तो जो अभी उनका फ्यूचर का जनरेशन होगा ना, वैसे जैसे उनके सन हुए, फिर उनके सन, उनके सन, उनके सन, वैसे द जनरेशन कीप्स गोइंग ना। तो यहाँ पे वैसे कि जो किंग होगा ना, रॉयल फैमिली में बॉर्न हुआ रहेगा, वो लोगों पे रूल करता है ऐसे। तो जो अभी करंट किंग होगा, वो वहां पे सऊदी अरेबिया में रूल करता है वैसे। समझा? यस मैम। Okay, so this simple definition is not adequate. It reminds us that democracy is people rule. But if we use this definition, हाँ, ठीक है, म्यूट कर दो ना पार्थ प्लीज। Yeah. So this simple definition is not adequate. It reminds us that democracy is people's rule. But if we use this definition in an unthinking manner, we would end up calling almost every government that holds an election a democracy, right? तो यहाँ पे हम लोग ने क्या बोला कि डेमोक्रेसी क्या है? जो गवर्नमेंट की बॉडी है, इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसके रूलर्स को लोग सिलेक्ट करते हैं। बट इतना ही बोलना इज इनकम्प्लीट है, इट्स नॉट एडिक्वेट। क्यों एडिक्वेट नहीं है? वी विल सी। दैट वुड बी वेरी मिसलीडिंग, as we shall find out in chapter 3 that every government in contemporary world wants to be called a democracy, even if it is not so. That is why we need to carefully distinguish between a government that is democracy and one that pretends to be one, ठीक है। तो बाकी अभी ये जैसे सऊदी अरेबिया है ना, वो भी बोल देते हैं, अभी वहां पे हम लोग ने देखा किंग का रूल है, तो भी वो लोग बोलेंगे कि नहीं, हमारी कंट्री तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमें तो लोगों ने ही सिलेक्ट किया है। तो ये हमें पता है कि लोगों ने वहां पे नहीं सिलेक्ट किया, तो पीपल कैन mislead the country. Okay, so that is why it is very important to know कि actually जो गवर्नमेंट डेमोक्रेसी फॉलो करती है एंड जो प्रिटेंड कर रही है, वो दोनों सेम सेम है या नहीं। We can do so by understanding each word in this definition carefully and spelling out the feature of a democratic government. चलो हम आगे का पढ़ते हैं, एक ही मिनट।
तो अभी हम लोग ने बेसिकली डेफिनेशन देखा डेमोक्रेसी का, एक डेफिनेशन देख लिया कि जो गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट का रूलर है जिसको लोग इलेक्ट करते हैं, दैट इज नोन एज गवर्नमेंट। एंड हम लोग ने दो एग्जांपल्स देखे, म्यांमार और सऊदी अरेबिया का, जहाँ पे नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है, कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या है। We have started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. This raises many questions, ठीक है, बट ये जो हमारा डेफिनेशन है इसका बहुत सारा क्वेश्चन पीपल कैन रेज. सो व्हाट आर दोस क्वेश्चन? हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन? Which official must be elected for any government to be called a democracy? Which decision may be taken by non-elected officials in a democracy? तो ये हमारा डेफिनेशन है. तो हम लोग ने बोला जो रूलर लोग इलेक्ट करते हैं, लोग सिलेक्ट करते हैं, तो ये रूलर कौन है? तो देयर आर मेनी क्वेश्चंस व्हिच कैन बी रेज कि ये सारे रूलर्स कौन है, इनका जो डिसीजन होगा. एक मिनट. हाँ, या इनका जो डिसीजन होगा वो कौन लेंगे, फिर जो नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स होंगे उनका क्या रोल है, what kind of election constitutes a democratic election, what conditions must be fulfilled for an election to be considered democratic. तो हम बोलते हैं लोगों ने उनको सिलेक्ट किया रूलर को, ये डेफिनेशन के हिसाब से लोगों ने रूलर को सिलेक्ट किया, तो ये इलेक्शन कैसे हुआ, कौन से बेसिस पे, क्या क्या कंडीशंस थे. So there are many questions which can be raised by this definition, like who are the people who can elect the rulers, कौन है जो ये rulers को select कर सकते हैं, should this include every citizen on equal basis? Can a democracy deny some citizen this right? तो क्या सब citizen को इसका right है, या कुछ ऐसे citizen हैं जो वोट नहीं कर सकते? तो ये definition से, तो ये डेफिनेशन से बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं. Finally, what kind of government is democracy? Can elected rulers do whatever they want in democracy? फिर ये जो rulers elect हुए हैं, क्या वो सब कुछ कर सकते हैं? और must a democratic government function with some limits, या उनके कुछ limits है जो उन्हें भी they have to follow? So is it necessary for a democracy to respect some rights to the citizen? क्या उनके पास ऐसे कोई rights है जो citizens को दिए जाते हैं and citizen can follow them? तो ये एक definition के वजह से बहुत सारे question raise हो सकते हैं. So let us consider each of these questions with the help of some example. तो ये सारे questions जो हमने पूछे यहाँ पे, उनको example के रूप में हम understand करते, so that it becomes easy for us. Major decisions by elected leaders. ठीक है. In Pakistan, General Pervez Musharraf led a military coup in October 1999. He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. तो पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया गया है. 1999 में एक जनरल थे परवेज मुशर्रफ, जो क्या करते थे, मिलिट्री को लीड करते थे. ठीक है, लीडर थे मिलिट्री के. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ओवरथ्रू किया. किसको ओवरथ्रू किया? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ओवरथ्रू किया, निकाल दिया, और उन्होंने खुद को डिक्लेयर क्या किया, एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ कंट्री. ठीक है, एक फटाक से रिवाइज करते हैं. परवेज मुशर्रफ थे, आर्मी को लीड करते थे, उन्होंने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ओवरथ्रू किया और खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर दिया. एंड लेटर इन 2002 उन्होंने खुद को एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर कर दिया. ही हेल्ड द रेफरेंडम. किसी को पता है व्हाट डज रेफरेंडम मीन्स? नो मैम. ओके, रेफरेंडम में क्या होता है बच्चा, एक क्वेश्चन आंसर सेशन होता है जहाँ पे पूरे कंट्री के सिटीजन आते हैं एंड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो कंट्री के लोगों का ओपिनियन हो गया, या जो मेजोरिटी होगी कंट्री के लोगों की,
उनको फिर वो डिसीजन को आंसर में लिया जाता है। लाइक इफ यू वांट एन एग्जांपल, वहां पे क्वेश्चन एक एग्जांपल लेते हैं कि वो रेफरेंडम 2002 में उन्होंने रेफरेंडम किया। तो रेफरेंडम में उन्होंने ये क्वेश्चन लोगों को पूछा कि क्या आपको मैं परवेज मुशर्रफ नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए आपके प्रेसिडेंट के रूप में, डू यू गाइस वांट मी एज अ प्रेसिडेंट in a form of president for next 5 years? Suppose this was the question which was asked, and majority of people came with the answer as yes, and that is why the country granted him 5 years का extension. समझा? तो what does referendum means? कि एक पोल किया जाता है और वो पोल में जो मेजोरिटी लोगों का आंसर आता है उसी आंसर को एज अ फाइनल आंसर डिक्लेयर करते हैं। क्लियर व्हाट डज रेफरेंडम मीन्स? Both of you? Yes, ma'am. Yeah. So that is why लोगों का आंसर मेजोरिटी में यस आया एंड इसीलिए उन्हें फिर 5 इयर्स का एक्सटेंशन मिल गया। Pakistan media, human rights organizations and democracy activists said that the referendum was based on malpractices and fraud. तो बहुत सारे लोग ऐसे आए आगे जिन्होंने बोला कि ये जो रेफरेंडम था ये किसके बेसिस पे किया गया था, ये फ्रॉड था, ये पूरा माल प्रैक्टिसेस था, लोग अंदर ही अंदर मिले हुए थे। In August 2002, he issued a legal framework order that amended the Constitution of Pakistan. According to this order, the president can dismiss the national and provincial assemblies. The work of the civilian cabinet is supervised by a National Security Council, which is dominated by military officers. तो जब लोगों ने बोला कि नहीं ये आपका रेफरेंडम फ्रॉड है, ये इलीगल है, तो अगस्त 2002 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर करके एक इशू किया। उसमें क्या था, उसमें उन्होंने ये सारे रूल्स बताए थे कि जो प्रेसिडेंट है, जो वो खुद थे उस टाइम पे, द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबलीज, के जब उनका मन हुआ वो नेशनल और प्रोविजनल असेंबलीज को डिसमिस कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। द वर्ड ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल व्हिच इज डोमिनेटेड बाय मिलिट्री ऑफिसर्स। और सिंस वो मिलिट्री में थे, आर्मी में थे, हम लोग ने देखा आगे कि वो आर्मी के लीडर थे, तो उन्होंने क्या बोला कि जो सारा वर्क सिविलियन कैबिनेट का जो सारा वर्क है उसको कौन सुपरवाइज करेगा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, और जिसमें किसका डोमिनेशन ज्यादा था, मिलिट्री ऑफिसर्स का। तो इनडायरेक्टली वो क्या कर रहे थे, वो अगेन आर्मी का रूल ही अपने कंट्री में चाह रहे थे और खुद का ही रूल उनको अपने कंट्री में बना के रखना था। क्लियर यहाँ तक? Yes, ma'am. Daksh, what about you? Daksh? Yes, ma'am. Okay. After passing this law, elections were held to the national and provincial assemblies. So Pakistan has had elections, elected representatives have some powers. और फिर जैसे उन्होंने ये लॉ किया, तब elections कहाँ पे held होते थे, national and provincial assemblies में। and यहाँ पे क्या होता था, जो elected representatives थे, अभी इनमें जो जीते या जो majority से वोट जीत गए, उनको क्या था, उनके पास थोड़े बहुत powers थे, but the final power rested with military officer and General Musharraf himself. ठीक है, जो बंदा इलेक्ट हुआ उनके पास तो पावर रहता था, बट वो सिर्फ ऊपर ऊपर का पावर था। जो फाइनल पावर, जो फाइनल डिसीजन रहना था, वो किसके पास मिलता था, मिलिट्री ऑफिसर्स या जनरल मुशर्रफ उनके खुद के पास या तो मिलिट्री ऑफिसर्स के पास। Clearly, there are many reasons why Pakistan under General Musharraf should not be called a democracy. बराबर, तो ये एग्जाम्पल को क्या आप डेमोक्रेसी बोल सकते हो क्या? यहाँ पे जनरल मुशर्रफ को उसने खुद ने बता दिया कि वो इलेक्टेड पर्सन है, पर यहाँ पे हम लोग ने देखा कि नेशनल एंड प्रोविजनल असेंबलीज में लोग वोट करते थे, बट लास्ट का पावर किसके पास रहता था, उनके पास ही रहता था, या तो मिलिट्री ऑफिसर्स के पास रहता था। तो क्या ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को आप डेमोक्रेसी बोल सकते हो?
See, but let us No, focus on ma'am. one of these. Can we say that the rulers are elected by the people in Pakistan? Can you say that these people are elected by Pakistan? Like No, these people ma'am. are elected. Yeah. So do you think this is a form of democracy? No, ma'am. Yeah. Not quite. People may have elected their representatives to the national and provisional assemblies, but those elected representatives were not really rulers. ठीक है, यहाँ पे हमारे डेफिनेशन के हिसाब से क्या था कि लोग रूलर को सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे लोगों ने भले ही रूलर्स को सिलेक्ट किया हो, बट लास्ट का ऑर्डर किसका था? वो रूलर्स का ही था। तो क्या ऐसे फॉर्म को गवर्नमेंट ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेसी बोल सकते हैं? No. So this is again an example of non-democracy government. तो इससे हमारा definition फिर ऊपर नीचे हो जाता है, right? So they cannot take the final decisions. The power to take the final decisions still rested with army officials and with General Musharraf. And none of them were elected by the people. ना ही लोग उसको elect करते थे और उनके पास rule रहता था कि वो changes कर सकते हैं। तो ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे। This happens in many dictatorships and monarchies. और ऐसा ही सिचुएशन कहाँ पे होता है? जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, कोई रूल कर रहा है, या जहाँ पे किंग का रूल है, ऐसे सारे सिचुएशंस में भी ऐसे सारे कंट्रीज में भी ऐसे सिचुएशंस होते हैं। They formally have an elected parliament and government, but the real power is with those who are not इलेक्टेड। ठीक है, कि वहां पे किसके पास रियल पावर होता है? जिनको लोग सिलेक्ट करते हैं उनके पास पावर नहीं होता। In a few countries, the real power was with some external powers and not with locally elected representative. This cannot be called as people rule. तो ऐसे रूल को आप बोलोगे कि ये लोगों ने सिलेक्ट किया है ऐसे रूल को? No, ma'am. तो हमारा डेफिनेशन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सो दिस गिव अस द फर्स्ट फीचर। व्हाट इज द फर्स्ट फीचर? इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोस हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो यहाँ पे हमारा डेमोक्रेसी का फर्स्ट फीचर हमें पता चल गया। फर्स्ट फीचर क्या है? कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है कि ये डिसीजन लेना है या नहीं, वो किसके ऊपर रहेगा? जिनको लोगों ने सिलेक्ट किया है। ओके, द डेमोक्रेसी इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोस हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। क्लियर? Yes, ma'am. सो दिस बिकम्स आवर फर्स्ट फीचर। ओके, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो दिस इज आवर फर्स्ट फीचर। फर्स्ट फीचर क्या है? कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है कि ये डिसीजन लेना है या नहीं, ये जो पावर है वो किसके हाथ में रहेगा? जिनको लोगों ने इलेक्ट किया है। द सेशन विल गेट ओवर, काइंडली ज्वाइन अगेन।